ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। नाउ लास्ट क्लास में टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू तीनों चीजें क्या होती है, कैसे निकलेंगी, क्या फॉर्मूलाज है, दैट वी हैव डेल्ट विद। वी हैव आल्सो डेल्ट विद द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड monopoly and monopolistic competition. In case of perfect competition, price always remains constant because firm is a price taker. Demand और supply के हिसाब से they take the price, and it is always constant. And when MR and AR are, when AR is constant, AR is equal to price. AR is equal to price. जब वो constant है, then TR increases at constant. In case of monopoly and monopolistic competition, what happens? Price will, more quantity will be sold for lesser the price. डिमांड की बढ़ेगी ना, जितना कम प्राइस होगी उतनी ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड होगी, तो इसीलिए जितना सस्ती चीजें रखोगे उतनी ज्यादा सेल होती है। तो जैसे जैसे आप प्राइस कम करोगे टोटल रेवेन्यू घटता है एट सम पॉइंट, ठीक है। तो इन द केस ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक प्राइस विल डिक्रीज, एज देन व्हेन प्राइस विल डिक्रीज टोटल रेवेन्यू विल decrease. There will be a point when total revenue will reach its maximum. In that case, marginal revenue will be zero. And AR तो चलो, AR will be zero कब? AR कब zero हो सकती है? ठीक है। So relation estimation, सबसे पहले तो what was the formulas? TR is equals to AR into Q. In this case, AR is price, ठीक है, और एक TR is equals to sigma MR, ठीक है, sigma MR. Now AR is equals to TR upon quantity, and MR is equals to TR n minus TR 1 minus TR 0. Clear? Any doubts इसमें फॉर्मूलाज में? नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन TR और MR अभी हमने किया, when TR is increasing at decreasing rate, MR is decreasing. MR is zero, TR is MR is negative, TR starts increasing. Okay, when TR is diminishing, MR, when TR is increasing at constant rate, MR क्या होगी? constant. जब हमने perfect competition वाला केस पढ़ा था, then जब TR कांस्टेंट रेट में इंक्रीज हो रही होगी तो MR को भी कांस्टेंट होना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशन क्या होता है? When AR is decreasing, MR should be decreasing faster. But AR decrease होगी तो MR faster decrease होगी, तभी तो वो नीचे है ना उसके, समझ में आया? That is why it's below AR. Thus downward sloping MR curve is below downward sloping AR curve, और इसीलिए जो that means AR is more than MR. Understand? This is the first relation. Next is if AR is constant, जब AR constant होगी तो MR will be equal to AR. When AR constant, MR is equals to AR. And third is MR can be negative, but AR cannot be negative. MR can be zero or negative, but AR neither negative नहीं zero भी, ठीक है, but not zero AR, हाँ average revenue zero हो सकता है, ठीक है, average revenue can be zero but negative नहीं हो सकता है AR कभी भी, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू जीरो, अब ये ऐसे कि आपको होता है फ्री में चीजें दे दो, बट कभी भी आप चीज भी दोगे और पैसे भी दोगे, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा होता है कि कहीं भी दुकान पे आप कुछ सामान खरीदेंगे और दुकान वाले ने आपको इन रिटर्न पैसे दे दिए, हाँ दैट भाई नेगेटिव नहीं हो सकता है, चीज आपको फ्री में मिल सकती है, जीरो कॉस्ट पे मिल सकती है, बट नेगेटिव में कभी नहीं मिल सकती है। अंडरस्टैंडिंग? प्राइस है ना यार कभी नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है कि भैया एक के साथ एक फ्री मिल गया, दैट इन दैट केस, बट दूसरे कमोडिटी का प्राइस तो जीरो है ना, बट
it can never be negative. ऐसा नहीं होगा बदले में आपको पैसे मिलेंगे सामान लेने के. So that is very hypothetical. Okay, so moving on, firms' revenue curve in the different markets. First is perfect competitive market, then monopoly and the monopoly. In case of revenue curve under perfect competition market or perfectly competitive market or perfect competition, under perfect competition firm कैसी होती है? It's a price taker. वो अपने प्राइस मार्केट प्राइस को चेंज या इन्फ्लुएंस कर सकती है. वो जितनी मर्जी चाहे उतनी क्वांटिटी बेच सकती है एट द प्रिवेलिंग प्राइस. इट इज द फर्म, अगर फर्म अपने प्रोडक्ट को हायर बेचने लगेगी प्रिवेलिंग प्राइस से, वो अपने कस्टमर्स खो देगी. और अगर कम बेचेगी तो अननेसेसरी लॉस, because there are so many other firms in the market selling the same product at the similar value matter करता है. Next, a firm under perfect competition has to accept the prevailing price. It means जो AR होगा वो हमेशा constant है. AR will price will always be constant. जितनी चाहे उतनी quantity at a prevailing price से. If constant AR implies constant MR, constant जब margin एवरेज रेवेन्यू सेम है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम होगा. मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? दी एडिशनल प्राइस जो आपको अगर आप मुझसे मिल रही है, जब आपने एक पेन 10 रुपए का बेचा तो दूसरा पेन भी 10 रुपए का ही बेचोगे ना. सो दैट इज AR विल बी इक्वल्स टू MR, दैट इज द प्राइस विल बी इक्वल्स टू नाउ ठीक है. So डिमांड जो आपका डिमांड कब होता है इन दी फर्म्स रेवेन्यू कब अंडर परफेक्ट कंपटीशन? ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, which means that AR और MR is constant, कभी चेंज नहीं होंगे. एंड बिकॉज दे आर constant नहीं चेंज होते हैं, जो फर्म है वो n नंबर जो भी क्वांटिटी बेचना चाहे एट द पर्टिकुलर और द प्रिवेलिंग प्राइस बेच सकती है. Firm's AR curve is perfectly elastic under perfectly elastic हुआ, but is perfectly elastic क्या मतलब? कोई चीज को आप कितना खींच सकते हो. तो perfectly elastic है ना, प्राइस उतना ही आप जितना मर्जी क्वांटिटी बेच लो, कम बेचो जितना मर्जी, that is perfectly elastic demand. Revenue curve under monopoly, वही जो हमने पहले कर्व्स में पहले वाले केसेस में पढ़ा था, स्टीपर और फ्लैटर वाला. तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के केस में वही होगा. This is the monopoly and this is the monopolistic competition. So जो डिमांड कर्व्स होंगे उसमें यही डिफरेंस होगा. इस केस में MR और AR कर्व थोड़ा सा स्टीपर होगा और इस केस में थोड़ा फ्लैट. ठीक है. So under monopoly the firm's average revenue curve slopes downwards from left to right. It means that अगर मोनोपोलिस्ट चाहे तो वो अपनी ज्यादा क्वांटिटी बेच सकता है अगर वो प्राइस को कम कर दे. अगर जैसे दिस इज AR, दिस इज MR, AR एंड तो इस केस में क्या है? अगर फर्म चाहे कम क्वांटिटी, जैसे जितनी प्राइस कम हो जाएगी क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना. समझ दिख रहा है? जैसे जैसे वो प्राइस कम कर रहा है क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है. तो मोनोपोली के केस में वो अगर प्राइस कम करता है तो he or she can sell more of that quantity. अब मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर होता है, सिंगल सेलर है वो प्रोडक्ट का, क्योंकि मार्केट में वो जो भी प्राइस चाहे वो प्राइस फिक्स कर सकता है. Thus there एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और डिमांड के बीच में. कैसा? नेगेटिव हुआ ना. हायर द प्राइस लेसर द demand, lower the price, higher the demand. There is a negative relationship between price of the commodity and its demand. Accordingly, firm का जो AR कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है. As noted earlier, अगर AR को डाउनवर्ड स्लोप करेगा, MR कर्व भी डाउनवर्ड स्लोप करेगा, पर MR फास्टर गिरेगी than the AR. So MR is less than AR. इस केस में दोनों ही केस में MR would be less than AR. MR curve also slope, ठीक है, that's it. So AR curve slopes downward. मोनोपोली को ये दर्शाता है कि मोनोपोली जितना चाहे उतना प्राइस कम कर सकती है, और जैसे जैसे वो प्राइस कम करेगी उसकी जो डिमांड है दैट विल स्टार्ट इंक्रीज. ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो रही है ना इस तरफ, जैसे जैसे वो प्राइस कम करेगा डिमांड
गिरने लग जाएगी, डिमांड बढ़ने लग जाएगी। So or in this case MR falls faster, MR जल्दी ज़्यादा गिरेगा compared to AR। रेवेन्यू कर्व अंडर दी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इस केस में भी मोनोपोली जैसा होता है, फर्म्स थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं प्राइस में। एआर कर्व ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोली ये भी डाउनवर्ड स्लोप होता है। हाउएवर डिफरेंस है वो ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में ज्यादा इलास्टिक होता है कंपेयर्ड टू अंडर मोनोपोली, मोर इलास्टिक देन मोनोपोली। सो अभी तो ये प्राइस है, थोड़ा सा प्राइस भी चेंज हुआ है, क्वांटिटी भी थोड़ी ही चेंज हुई, ठीक है, बट इधर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, थोड़ा भी प्राइस चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड में वही इलास्टिक नॉन इलास्टिक वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले समझाया था, दैट इन केस ऑफ मोनोपोली ज्यादा स्टीपर कर्व होता है, थोड़ा भी चेंज इन प्राइस कैन कॉज थोड़ा सा चेंज इन प्राइस विल नॉट कॉज मच चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बट इन दिस केस अ लिटिल चेंज इन प्राइस कैन कॉज लार्ज डिफरेंस इन द क्वांटिटी। समझ में आया? So under the monopoly there is inverse relationship. Accordingly, AR curve slows downward, MR curve slows downward and faster than AR curve is इस केस में बस the only difference between monopoly and monopolistic competition is monopolistic competition के केस में it is more elastic, it is more elastic, and in monopoly it is less elastic। क्यों होता है ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट? इसलिए होता है क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में गुड्स के क्लोज सब्सिट्यूट्स होते हैं। अगर एक गुड की प्राइस थोड़ी भी चेंज ऊपर नीचे होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड पे काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है बिकॉज ऑफ द क्लोज सब्सिट्यूट्स। इन द मोनोपोली मार्केट ऑन द अदर हैंड गुड्स डू नॉट हैव क्लोज सब्सिट्यूट्स, मोनोपोली में नहीं होते हैं, इसलिए अगर थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे कर भी देता है मोनोपोलिस्ट तो भी क्वांटिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। Firms revenue curve or demand curve in different market situation a comparative, बस बेसिकली उन्होंने सबको बना दिया है। Perfect competition is the constant line और monopoly केस में steeper, monopolistic केस में समझ में आया? So firms demand curve is perfectly elastic है किस केस में? Perfect competition, less elastic in monopoly and more elastic in monopoly। ठीक है, that is it about your revenue। Okay, now I'm starting with this table now। So MR is given, output is given, TR कैसे निकालोगे? We have studied a formula where TR is equal to sigma MR। First would be 18 plus 14 32 plus 10 42 plus 6 48 48 plus 2 50। Now AR will be AR is equals to TR divided by Q। TR is equals to TR divided by Q। Now 18 divided by Q, that is 1 कितना हो गया? AR। 32 divided by 2 C। 42 divided by 3 14 48 divided by 4 and 50 divided by 5 10। Now here सबका AR TR निकल गया। Now placing the diagram, सबसे पहले let us start with TR। Now quantity is 1 2 3 4 5 दोनों जगह लिख लिया। Maximum TR is 50, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे वैल्यू चूज करनी होती है। You can start with 10 20 30 40 and 50। On the other hand for AR and MR maximum value is 80 और आप देख सकते हो कि 16 है 12 है उधर 14 आप 4 की मल्टीपल्स को ले सकते हो, ठीक है। So that would be 4 8 12 16 and 18। Here you can take any multiple of your choice। 20 8 पर 20 20 here, ठीक है। So understanding now, let's place for TR। First quantity पे TR is your 8, so here you will। Next is 30, then is 42, then comes 48, and then comes 50। ठीक है, this is not going down, वहीं तक का डायग्राम। Next is वही नीचे नहीं जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज AR। AR इज 18
फर्स्ट केस में 18, नेक्स्ट केस में 16, then 14, 12, and then 10. Next is your MR. MR first is 18, then 14, then 10, then 6, 2, and then 2. तो MR 0 हुआ, जब MR 0 ही नहीं हुआ तो TR मतलब अभी भी मैक्सिमम पर नहीं पहुंचा, मैक्सिमम नहीं है, दिस इज नॉट द मैक्सिमम TR, इसके आगे इंक्रीज हो सकता है क्योंकि 2 है, हो सकता है अभी 0 जाए आगे. So when MR will be 0, TR will be maximum. When MR is negative, TR will start declining. TR always increases at decreasing rate or decreasing rate. When MR, जब MR और MR constant नहीं होगा तो MR and AR दोनों का downward sloping graph बनेगा. And in this case, MR will always be less than AR. MR will be less than AR, or MR will fall faster than AR. MR can